ETC World, a desire to connect the world. सब्सक्राइब करें ETC वर्ल्ड चैनल को, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello, good morning. You are watching my YouTube channel. I am Kumar Sampusaran. Today the people of whole world are facing the pandemic coronavirus. It has badly affected us. But friends, it is also the time for our test. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन मुसीबत से लड़कर ही, चुनौतियों से टकरा कर ही हम अपनी परिभाषा साबित कर पाते हैं। जिस प्रकार एक शांत समुद्र में कभी भी नाविक कुशल नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने जीवन के मुसीबतों से, चुनौतियों से नहीं लड़ेगा, तब तक मनुष्य की मनुष्यता कभी साबित नहीं होगी। So friends, it is our nature that we have to face so many examinations in our life. Without testing, even gold cannot be proved itself that it is the gold. This is time to be united, and being united, we can fight against this contagious virus. Well, today I have appeared before you with the concept of English language, especially for those students who have been badly suffered with this dangerous time. Friends, today's concept is not beneficial for the students of senior levels, but all the junior levels too. So friends, today I start today's topic from the very beginning. I hope you will be enjoying with it and surely you will be benefited with this. तो मैं अंग्रेजी भाषा के परिचय से अपना क्लास प्रारंभ करता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। English is a language. Originally the language of the people of England. Today English is the main language of the United Kingdom, Ireland, the United States of America, Canada, Australia, New Zealand and more than 50 other countries. Interestingly, English is not the official language of the USA, though it is the official language of some US states. अंग्रेजी एक भाषा है, मूल रूप से इंग्लैंड के लोगों की भाषा है। अर्थात यहाँ यह बताया जा रहा है कि अंग्रेजों की, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की मातृभाषा है। आज अंग्रेजी यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 50 से अधिक अन्य देश की मुख्य भाषा है। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा नहीं है, हालांकि यह कुछ अमेरिकी राज्यों की आधिकारिक भाषा है। वर्ल्ड वाइड there are over 400 million native speakers of English and over 1 million more people speak it as a second language. English is probably the third language in terms of number of native speakers after Mandarin and Spanish, and probably the most widely spoken language on the planet, taking into account native and non-native speakers. दुनिया भर में अंग्रेजी के 400 मिलियन से अधिक देसी वक्ता हैं और 1 अरब से अधिक लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। देसी बोलने वालों की संख्या मंदारिन और स्पेनिश के बाद के मामले में अंग्रेजी शायद तीसरी भाषा है और शायद मूल और गैर देसी वक्ताओं को ध्यान में रखते हुए यह ग्रह पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। Consequently, English is sometimes described as a world language or a global lingua franca. It is the world's most widely used language in international business and telecommunications, newspaper and book publishing, scientific publishing, mass entertainment and diplomacy. English uses a writing system based on the classical Latin or Roman alphabet. The English alphabet with 26 letters that have small or lowercase forms. फलतः अंग्रेजी को कभी कभी विश्व भाषा या वैश्विक भाषा के रूप में वर्णित किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दूरसंचार, समाचार पत्र और पुस्तक प्रकाशन, वैज्ञानिक प्रकाशन, जन मनोरंजन और कूटनीति में दुनिया की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी शास्त्रीय लैटिन या रोमन वर्णमाला पर आधारित एक लेखन प्रणाली का उपयोग करता है जिसमें 26 अक्षरों वाले वर्णमाला समाहित हैं। इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनको एक बार हम देख लेते हैं। पहला शब्द है लिंग्वा फ्रैंका।
लिंग्वा फ्रेंका का क्या अर्थ होता है? अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्या अर्थ हुआ? एक भाषा जो विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच में एक आम भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, उसे लिंग्वा फ्रेंका बोलते हैं। बोरो मतलब होता है उधार लेना। इसका अर्थ हुआ कि जब हम कोई शब्द दूसरे भाषा से अपने भाषा में समाहित करते हैं तो बोरो कहलाता है। मीन्स टेक ए वर्ड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज एंड यूज इट एज योर ओन लैंग्वेज। उसके बाद है लॉन वर्ड, ये उसका सिनोनिम्स है, अ वर्ड दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। ये भी वही हुआ, एक भाषा जो दूसरी भाषा से उधार लिया गया हो उसे लॉन वर्ड बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग अब देखेंगे कि ए से जेड तक का इंटरनेशनल एक्सेंट क्या होता है। इसको यहाँ से ध्यान से सुनिए और उसका नकल करने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सेम टू सेम बोलने का कोशिश कीजिए। A B B C C D D E E F F G G H H. You may also hear some native speakers say H, but this is considered a non-standard form. I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R. Notice that I don't say air or R, which I've heard a lot of students try and say, but it's R. It's just one vowel sound. S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z. In American English, you may also hear this pronounced as Z, X, Y, Z, while in British we say X, Y, Z. So friends, thank you. We must not forget, education is the mirror in which we can peep a real figure. आप सभी दोस्तों से यह भी नम्र निवेदन है कि आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट दिया हुआ रहता है, टेस्ट को सही तरीके से भरें और अपने आप को नियमित रूप से जांच करें। जांच करने के बाद ही मैं यह तय कर पाऊंगा कि आपका ज्ञान का लेवल किस प्रकार बढ़ रहा है
या घट रहा है। तो आप अगर आप सीनियर हैं तो अपने से छोटे बच्चे को भी टेस्ट दिलवाइए। ये तो इंट्रोडक्शन था। आने वाले वीडियो में मैं शुरू से ट्रांसलेशन, ग्रामर को बहुत ही शुरुआत से शुरू करूँगा और हमें उम्मीद है कि इस तरह से इसको शुरू करूँगा कि आपको सीखने में कहीं भी त्रुटि नहीं होगी और आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। अंग्रेजी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पर टेस्ट सुविधा नहीं दी हुई थी। यहाँ पर मैं आपको नियमित रूप से टेस्ट दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसको खोलेंगे, सही तरीके से भरेंगे और टेस्ट देंगे, सारा रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगा और उसके आधार पर मैं तय करूँगा कि आपकी जानकारी किस तरह से बढ़ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ATC World, a desire to connect the world.